ભરૂચની નર્મદા ચોકડીથી જીપ્સમના વેપારીનું અપહરણ કરી 15 લાખ ઉપરાંતની લૂંટને અંજામ આપનાર ગેંગના મુખ્ય ભીમાસિંહ ઉર્ફે ભીમાને ભરૂચ પોલીસે રાજસ્થાનથી ઝડપી પાડ્યો છે। ભીમાને રૂપિયાની જરૂરિયાત ઊભી થતા હરિયાણાના કુખ્યાત આરોપીઓ સાથે ઘટનાને અંજામ આપ્યો હોવાનું પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે। ભરૂચ અને સુરતમાં જીપ્સમનો વેપાર કરતા અપૂર્વ શાહને છેલ્લા 9 માસથી મિત્ર બનેલા ભીમસિંહ ઉર્ફે ભીમા દ્વારા વડોદરા ખાતે સારી ક્વોલિટીનું જીપ્સમ અપાવવા લઈ જવાની વાત કરી અપૂર્વને તેના સાગરીતો સાથે નર્મદા ચોકડીથી કારમાં લઈ જઈ પર નજીક જંગલ ઝાડીવાળા વિસ્તારમાં અપૂર્વ શાહનું ભીમા એન્ડ ગેંગના સભ્યોએ બંદૂક પેટ ઉપર મૂકી હવામાં ફાયરિંગ કરી અપૂર્વ અને તેના પરિવારને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપી તેણે પહેરેલા સોનાના ઘરેણાની લૂંટ કરી તેની પાસે તેના અન્ય વેપારી મિત્રોને ફોન કરાવી તેને રૂપિયાની જરૂર છે તેમ જણાવી ભીમા ગેંગના માણસોએ અલગ અલગ સ્થળે જઈ 15 લાખથી વધુની મત્તા લઈ અપૂર્વને કપડાં વડે તેની જ ગાડીમાં બાંધી દઈ 15 લાખથી વધુની મત્તા લઈ ફરાર થઈ ગયા હતા। ભરૂચ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકે અપૂર્વ શાહે અંગે ફરિયાદ આપતા પોલીસે અપહરણ લૂંટ સહિતની કલમો લગાવી ભીમા ગેંગ સામે ગુનો દાખલ કર્યો હતો। જે બાદ ગણતરીના દિવસોમાં પોલીસે લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપનાર ભીમસિંહ સોરેન ઉર્ફે ભીમા માનસિંહ ચોરાન રહેવાસી સિવાની જિલ્લો ભીવાની હરિયાણા અને રાજસ્થાનના ચુરુ ખાતેથી ઝડપી પાડી લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપનાર અન્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। પોલીસની તપાસમાં ભીમો અંકલેશ્વર ખાતે ભાડાના મકાનમાં રહેતો હતો। પૈસાની જરૂરિયાત ઊભી થતાં હરિયાણા આઝાદસિંહ નામના ગુનેગારને વાત કરેલ કે એક પાર્ટી છે જે આસાનીથી 40 થી 50 લાખ રૂપિયા આપી દેશે, તે પાર્ટી મારા ભરોસામાં છે, હું કહીશ ત્યાં મારી સાથે આવશે, તું તારી ગેંગના સાગરીતોને લઈ ગુજરાત આવજે, આપણે તેનું અપહરણ કરી તેને ડરાવી ધમકાવી પૈસા કઢાવીશું। આઝાદસિંહ પોતાની સાથે અમિત ઉર્ફે મીતા રહેવાસી સાત્રોદ, હિસારજી ભીવાની, પ્રકાશ રહેવાસી ગામ બરવાની, શિવાનીજી મીવાની, દરિયા ઉર્ફે વિજય રહેવાસી હરિયાણા તેમજ રાધે રહેવાસી હરિયાણાને સાથે પોતાની બોલેરો ગાડી લઈ અંકલેશ્વર આવેલા અને અંકલેશ્વરમાં આ વેપારીને કઈ રીતે અપહરણ કરવું તેની પ્લાનિંગ બનાવેલ। આ ચકચારી ગુનાના બનાવમાં ભીમા બાદ અન્ય આરોપીઓ ક્યારે પોલીસની પકડમાં આવે છે તે જોવું રહ્યું। तारीख 22 अप्रैल 2022 को भरूच के एक जिप्सम के कारोबार के साथ संलग्न व्यापारी अपूर्व शाह जी के द्वारा सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में एक फ़रियाद दी गई। उस फ़रियाद की जो मुख्य बातें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि उनसे भीम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने संपर्क किया जो कि पिछले 6-8 महीने से अंकलेश्वर में था और इनके परिचित में था। भीम सिंह ने संपर्क किया कि वडोदरा में जिप्सम का स्टॉक है, आपको मैं स्टॉक दिखाता हूँ। इस बहाने उनको नर्मदा चौकड़ी पे बुलाया। नर्मदा चौकड़ी पर उनको गाड़ी में बैठा करके वडोदरा रूरल के विस्तार में पोर एरिया में उनको ले गया, जहाँ पे पहले से उपस्थित बोलेरो गाड़ी और उसमें सवार 4 से 5 मानस के द्वारा अपूर्व शाह जो व्यापारी हैं उनको बंधक बनाया गया, उनको फायर आर्म्स यानी कि वेपन दिखाया गया, उससे डराया गया और उनको बंधक बनाकर लंबे समय तक रखा और उनके बाद उनसे अलग अलग तरीक़ों से पैसे मंगवाए। अपूर्व शाह के द्वारा विवशता के चलते लोकल अन्य व्यापारियों को संपर्क करके बिना इस बात का उल्लेख किए कि उनको बंधक बनाया गया है उनसे पैसा मंगवाया गया और इस प्रकार टोटल 11,69,000 रुपये मंगवाए गए। इसके अलावा अपूर्व शाह के पास उपस्थित वॉलेट से 5,000 रुपये, उनके सोने की चेन, बिंटी एवं अन्य साधन और फिर डेबिट कार्ड से भी कुछ पैसे निकाले गए। इस तरह टोटल लगभग 15 लाख रुपए अपूर्व शाह जी से ज़बरदस्ती वसूल किए गए। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया और तमाम आरोपी फरार हो गए। इस सूचना के आधार पर सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की योग्य धाराएं जैसे 365, 368, 384, 397, 120B और आर्म्स एक्ट की डिफरेंट सेक्शंस जैसे कि 25(1)A, 25(1)BA आदि के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए भरूच जिला की तमाम एसओजी, एलसीबी डिवीज़न की टीम और सर्विलेंस की टीम को तुरंत इस मामले में संलग्न किया गया। इस मामले के संलग्नता की गंभीरता को देखते हुए आज इस मामले के मुख्य आरोपी भीम सिंह शोरान को हमारी टीम द्वारा राजस्थान के चूरू से गिरफ्तार करके यहाँ लाने में सफलता प्राप्त की गई है।
भीम सिंह से पूछपरछ के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि भीम सिंह पिछले 6 से 8 महीने से व्यापारी अपूर्व शाह के साथ परिचय में था और उसे जिप्सम के अलग अलग स्टॉक्स कभी दिखाता था और उसी आधार पे अपूर्व शाह को विश्वास में लेकर के उसने ये पूरी साजिश रची। उसने इस साजिश के लिए हरियाणा के भिवानी ज़िले के आज़ाद सिंह को संपर्क किया और उसे सूचना दी कि इस तरह से अगर एक आरोपी को, एक व्यापारी को बंधक बनाया जाता है तो उससे कम 50 से 60 लाख रुपए निकलवाए जा सकते हैं। भीम सिंह से पूछपरछ में जो अन्य आरोपियों का नाम सामने आया वो है आज़ाद सिंह है, दारिया है, अमित है, राकेश है और इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए इनके वेयरअबाउट्स की तलाशी की जा रही है और इनकी धरपकड़ के लिए भी प्रयास लगातार जारी हैं। इस मामले में जो मुख्य कामगिरी करने में जो भूमिका रही वो सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर एनजे टापरिया, शक्ति सिंह जिलूबा पीसी सुहेल, पीसी मयूर, सी डिवीज़न पीआई डीपी उनदकत, पीसी आशीष, इस प्रकार के क्राइम ब्रांच पीआई भागीरथ सगर, एसओजी पीआई करण सिंह मंडोरा, इस प्रकार पूरे भरूच पुलिस की अलग अलग शाखाओं और डिवीज़न की टीम के द्वारा एक संकलित कामगिरी के द्वारा इस आरोपी की धरपकड़ करने में सफलता प्राप्त हुई है। आगे पूछपरछ जारी है और अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी प्रयास जारी है। सर, ये वारदात कब हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी? ये वारदात 13 अप्रैल 2022 को हुई और एफआईआर 22 अप्रैल 2022 को रजिस्टर हुई और इसका कारण ये है कि अपूर्व शाह जो व्यापारी हैं उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उनके फैमिली के फ़ोटोज़ उनसे जब्त किए गए और अपूर्व शाह जी इस मामले में पुलिस को कुछ भी बताने से घबरा रहे थे, मुंबई चले गए। उनको हमने विश्वास में लिया, मीडिया में भी ये न्यूज़ आई थी, उसके आधार पे हमने उन्हें विश्वास में लिया और उनको बोला कि आप एक बार आइए और हमें पूरी विगत बताइए कि ये बात सच्ची है या झूठी है। तो उसके बाद उनको हमने पूरा आश्वासन दिया। उसके बाद वो 22 अप्रैल को मुंबई से यहाँ आकर के फरियाद देने को रेडी हुए। सर, कुछ फायरिंग भी हुआ है, ऐसा कुछ? इन्वेस्टिगेशन जारी हैं। फायरिंग हुआ है तो उसके कार्टेजेस भी मिलेंगे हमें लोकेशन से। इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। फिलहाल कितने आरोपी वांटेड हैं? आरोपी 4 से 5 हैं। वैसे 4 का नाम अभी खुला है और 1 आरोपी अरेस्टेड है और 1 और आरोपियों के साथ संलग्नता, जिन्होंने उनको हरियाणा में चूरू में मदद की, उनकी संलग्नता से आगे भी आरोपियों के नाम खुलने की संभावना है।